تو ہم ہر مہینے پوری فیملی والے صرف ڈنگا کی سطح پر 42 لاکھ روپے کا اخراجات کرتے ہیں لوگوں کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، شجرکاری کے لیے اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے۔ لوگوں کا رویہ وہ جب کسی کو کوئی ہیلپ دی جاتی ہے نا تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے اس سے ہم بالکل بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جلدی بیماریوں کی اور آنکھوں کی بیماریاں زیادہ عام ہوئی تو ہم نے جتنے میڈیکل کیمپ کیے ہیں وہ اسی حوالے سے۔ زیادہ ورک تو الخدمت والے کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جہاں پیدل لوگ نہیں پہنچتے وہاں بھی پہنچ رہے ہیں اور اپنے کندھوں پہ سارا سامان اٹھا کے خود لے کے۔ ان کا جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر تمام کے تمام وقار الحق صاحب کی ساری فیملی مل کے اس کو مینج کرتے ہیں۔ جب میں تقسیم کر رہا تھا لوگوں میں تو وہاں سے ایک بابا جی نے کہا جی ہمارے لیے بہت کچھ ہو گیا ہے، اوپر والے مر جائیں گے، سردی آنے والی، اگر آپ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلیں جائیں تو آپ کی بڑی۔ 2025 کے اندر آ کے وہ تباہی ہوئی ہے 2022 سے کئی سو گنا زیادہ۔ پنجاب ٹیلی ویژن سے میں ہوں شہباز علی سیال، اور آج ہم جو انٹرویو کرنے چاہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر فلڈ نے، بارشوں نے جس طرح سے نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے مکانات بہت سارے جو ہے وہ ان کے نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجڑ چکی ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ فلڈ جو ہے وہ اتنا شدید سویر قسم کا ہے کہ لوگوں کی بستیوں کی جو بستیاں ہیں وہ اجڑ چکی ہیں، گھر ختم ہو چکے ہیں، ڈیمولش ہو چکی آلموسٹ ہر چیز۔ اسی بے سر سمانی کے عالم میں ڈنگا شہر سے ایک ہیومینٹی بیسز ایک آرگنائزیشن ہے، نیچر لورز، جو اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر میڈیکل کی سہولیات دے رہے ہیں۔ باقی باتیں انہی سے کرتے ہیں۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروفیسر وقار الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ سٹارٹ جو ہے نوید صاحب آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ بطور صحافی جو ہے اپنا فرض بھی انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، آپ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ پہلے آپ خیبر پختونخوا میں گئے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں نیچر لورز کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ 2022 کے اندر جب پورے ملک کے اندر فلڈ آیا تھا تو ڈنگا کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو یہ بہت چھوٹا گاؤں شہر ہے، لیکن اس کے باوجود اس ایریا سے ہم نے تونسا سے لے کے راجن پور تک، مہراب پور سے لے کے گلگت بلتستان، حمزہ نگر تک اور کمراٹ ویلی سے لے کے چترال تک، جہاں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا تھا، اہلیان ڈنگا کے تعاون کے ساتھ وقار الحق صاحب کی زیر نگرانی ہم نے تقریباً 6.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اپنے جو سیلاب متاثرہ بھائی تھے ان کے ریلیف کے لیے کام کیا، ان کے ریسکیو کے لیے کام کیا اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہم نے۔ اب 2025 کے اندر آ کے وہ تباہی ہوئی ہے 2022 سے کئی سو گنا زیادہ۔ اس میں پہلے تو صرف فلڈ آتا تھا، اب اس کے ساتھ کلاؤڈ برسٹ شروع ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ جتنا بھی لینڈ سلائڈنگ ہے، یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اس کو ایکسپوز کرنا یا پھر الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ ابھی جس وقت تباہی اور یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے نیچر لور ڈنگا ٹیم نے یہ جہلم کے ساتھ ہمارا ماجی کھوکھا ایک گاؤں ہے جو سب سے پہلے وہ ایک ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا تھا، وہ گاؤں بری طرح تباہ ہوا تھا، وہاں پہ 3 اموات بھی ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک پولیس والا بھی ریسکیو کرتے ہوئے جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پروفیسر صاحب کی زیر نگرانی وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں ہی جہلم کے اندر ان لوگوں کے ریلیف کے لیے اور ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کام شروع کیا اور تقریباً 30-35 لاکھ روپے کی لاگت سے ہم نے اپنے ان بھائیوں کی مسلسل مدد کی۔ ابھی KPK کے اندر یہ بلاسٹ اور باقی معاملات شروع ہوئے تو ہم نے یہاں سے ورک آؤٹ شروع کیا، اپنی ٹیم کے ساتھ ہم نے پلاننگ شروع کی کہ ہمیں ان بھائیوں کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ تو ہمارے ایک محترم دوست ہیں حاجی عرفان احمد بسری صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا، 30 لاکھ سے زائد رقم کی انہوں نے ہمارے ساتھ معاونت کی اور ان کی معاونت کے ساتھ باقی دوست احباب، وقار الحق صاحب کی اپنی فیملی بھی بیرون ملک ہوتے ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ
यहाँ से हम लोग निकले और सबसे पहले हमने तिमरगरा पहुँचे हैं। वहाँ पे हमारी डॉक्टर्स की टीम मौजूद थे, तकरीबन 8 डॉक्टर मेल फीमेल हमारे साथ थे। वहाँ से हम बोनेर पहुँचे हैं और बोनेर के उस गांव के अंदर जो बिशावनी गांव है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, सबसे पहले वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और यकीन जाने कि वो मनाज़र आज भी हमारी आंखों के सामने है और वो रोंगटे खड़े कर देने वाले। आप अंदाज़ा करें कि आपके सामने क्रेन चल रही हो और लोग पत्थरों को उठा उठा के साइड पे रख रहे हों और आपकी आंखों के सामने वहाँ से रेत के अंदर से लाशें बरामद हो रही हैं। इस मंजर को कभी भी बयान करना मुमकिन नहीं होता। हम लोग वहाँ पे मेडिकल का सामान लेके गए थे, इसके अलावा स्टाफ सारे हमारे साथ मौजूद था, डॉक्टर्स था, प्लस हमारे पास राशन मौजूद था। इसके अलावा हम लोग नकद कैश भी साथ लेके गए थे। तो जब हम बिशावनी गांव के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे हमने कैंप का अरेंज किया, लेकिन जो चीज़ हमें वहाँ पे महसूस हुई कि जब कोई चीज़ मीडिया हाईलाइट होती है तो वो बहुत ज़्यादा फोकस होने की वजह से जो दीगर इलाके हैं वो नज़रअंदाज। अब बिशावनी गांव के अंदर जाके हमने देखा कि वहाँ पर तो 1500-1800 की आबादी है तकरीबन। वहाँ पर आर्मी का मेडिकल कैंप भी मौजूद है, उसके बाद KPK गवर्नमेंट का भी मौजूद है। इसके अलावा अलखिदमत वालों ने भी मेडिकल कैंप लगाया हुआ था, दीगर NGOs के भी लगे हुए थे और वो सारे कैंप खाली पड़े हुए थे, क्योंकि 1500 की आबादी में अगर 100-150 मरीज़ हैं भी तो वो तो थोड़ी देर के अंदर जो है उनको मेडिसिन दे दी गई है। अब बाकी वहाँ पे वो हमें वेस्टेज ऑफ टाइम महसूस हुआ कि वहाँ पर ऑलरेडी रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, मेडिकल टीमें मौजूद हैं, कुछ लोग राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने ये देखा कि मकामी लोग वो जिनकी अमवात हुई हैं, उनके लवाहिकीन और बाकी लोग वो राशन रिसीव करने से भी कतरा रहे थे। उसकी एक तो वजह वहाँ पे वो फोटो सेशन और दीगर मामलात थे, दूसरा वो सोग के अंदर थे, और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, जिनके पास बर्तन नहीं है, जिनके पास चूल्हे नहीं है, उनको आप अगर राशन देंगे भी तो वो सड़क पे बैठ के उसको कैसे मैनेज करेंगे? सड़क पे भी कीचड़ है, पानी है, पत्थर है, हर तरफ तबाही है, तो वो क्या करेंगे? प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ यू स्टार्टेड नेचर लवर्स? मैंने वो KPK के मुख्तलिफ इलाकों में गुर्बत को अपनी आंखों से देखा। मैं उस वक्त एक स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी सतह तक जो कुछ भी हो सका इन इलाकों की खिदमत के लिए करूँगा। तो वो गुर्बत असल में या उन लोगों की मिजरीज ने मुझे इस तरफ आने पर मजबूर किया, तो वहाँ से मैंने ये स्टार्ट लिया 1989। तो टिल डेट में ये काम कर रहा हूँ जी। इसके लिए सबसे पहले घर वालों से ही स्टार्ट लिया गया था, तो मेरे घर वालों ने इस सिलसिले में मुझे फुली सपोर्ट किया है। हमने अपनी जो हमारी तमाम इनकम है तमाम फैमिली की, उसका हर 5वां हिस्सा हमने अल्लाह के लिए मखसूस कर रखा, तो 20% बनता है। तो हम हर महीने पूरी फैमिली वाले सिर्फ डिंगा की सतह पर 42 लाख रुपए का अखराजात करते हैं लोगों की सेहत के लिए, तालीम के लिए, शजरकारी के लिए और लोगों को रोज़गार मुहैया करने। 89 से अब तक मैं तकरीबन मतलब पहले मैं अकेला था, फिर साथ मिलते गए साथी, लेकिन इसमें ज़्यादा जो हमारे फंड्स हैं वो फैमिली के ही हैं। तो मैं तकरीबन 17,000 लोगों को रोज़गार मुहैया कर चुका हूँ। ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे कुछ वॉलंटियर्स दोस्त होते हैं, वो पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये काम करते हैं। फिर वो हमें बता देते हैं, तो उसके मुताबिक हम मैनेज कर। फंड्स में हमारे टोटल तकरीबन 55 लाख थे। अच्छा। उसमें से 50 लाख हम खर्च कर रहे हैं और अब मजीद हम इंशाल्लाह 50 लाख इकट्ठा करके तो स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान की लोगों का रवैया, वो जब किसी को कोई हेल्प दी जाती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है उससे हम बिल्कुल भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वो ऐसा मंजर होता है जिसे सिर्फ आपका जहन या आपका दिल महसूस करता है, उसे हम बयान कर ही नहीं सकते। ज़्यादा जो है वो जल्दी बीमारियों की और आंखों की बीमारियां ज़्यादा आम हुई। हमने जितने मेडिकल कैंप किए हैं वो इसी हवाले से। एलर्जी फैल गई है ना, एलर्जी ज़्यादा फैली है पानी की वजह से। ये जेलम में काम करते हुए मेरी अपनी टांगों पे एलर्जी हो गई थी। तो उन लोगों को असल में ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़्यादा ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, उसके बाद शेल्टर की ज़रूरत है कि उन्हें किसी तरह को छोटा मोटा खैमा या कोई बना के दिया जाए ताकि उसके अंदर आए। ज़्यादा वर्क तो अलखिदमत वाले कर रहे हैं। उनके कारकुनों की हालत ये है कि वो जहाँ पैदल लोग नहीं पहुँचते वहाँ भी पहुँच रहे हैं और अपने कंधों पे सारा सामान उठा के खुद लेके जाते हैं। उनका वर्क सबसे अलग थलग है। KPK गवर्नमेंट तो नज़र ही कहीं नहीं आ रही माजरत के साथ। अलबत्ता वफाकी गवर्नमेंट कुछ नज़र आ रही है या
कहीं कहीं आर्मी वाले नजर आ रहे हैं। बहरहाल हमारा तो ये कोशिश होती है कि हम लोगों से ज़रा हट के जो रूटीन वर्क है उससे अलग थलग काम किया जाए, हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं। ये एक जज्बा होता है रूहानी, ये किसी के अंदर पैदा नहीं किया जा सकता, ये या बिल्ट इन होता है या फिर आपकी सोच डेवलप हुई होती है। हमारी टीम के अंदर ये जज्बा मौजूद है, कीचड़ हो, पानी हो, पत्थर हो, हम उसके अंदर बिला झिझक दाखिल हो जाते कि हमारे जितनी भी ये इन इलाकों के विजिट होते हैं जहाँ पे जाकर रेस्क्यू का काम करते हैं, उनके अंदर आज तक भी फंड्स में से जो हमारे पास फंड्स जमा होते हैं, 1 रुपया भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खाने के लिए या रिहाइश के लिए उन फंड में से खर्च नहीं होता। उनका जितना भी खर्च होता है, चाहे वो 2 लाख हो चाहे 10 लाख हो, वो एक्सपेंडिचर तमाम के तमाम वकारुल हक साहब की फैमिली, इनके एक भाई अमेरिका के अंदर होते हैं, एक सिस्टर इनकी नॉर्वे में होते हैं, कि सारी फैमिली मिल के उसको मैनेज करते हैं। और वो तमाम तर एक्सपेंडिचर, चाहे हफ्ते का टूर हो चाहे 1 महीने का हो, जो हम लोगों ने वहाँ पे जाके मुख्तलिफ इलाकों में काम करना होता है, वो सारे का सारा जो है उसका अकोमोडेशन और ये तीनों चीज़ें वो सारी की सारी इन फंड से जनरेट नहीं की जाती है। उसमें अब आपको वजाहत कर दूं कि बेसिकली ये हमारा ऑपरेशन सिर्फ वहाँ 2-4 दिन जाने तक महदूद नहीं है। वहाँ पे जाने से कबल भी हमारी टीम्स वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो 2022 का पूरे मुल्क में हमारा नेटवर्क पहुँच चुका है, वो लोग हमें पहले उनकी नीड्स बताते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनकी नीड्स के मुताबिक। जस्ट लाइक अब बजोड़ में हम 3-4 दिन पहले पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे जाने तक 4 मेडिकल कैंप अरेंज हो चुके थे। वो हमने पहले उनको पैसे भेज दिए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके मेडिसिन वहीं से परचेज़ की, डॉक्टर्स को अरेंज किया और हमारे जाने तक वो 4 मेडिकल कैंप में अरेंज कर दिया। अब हमारे आने के बाद भी ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। उन लोगों की नीड्स के मुताबिक जो वो डेली बेस पे हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको रोज़ाना यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और हमारे जो रज़ाकारान हैं, वॉलंटियर्स वहाँ पे, वो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों की नीड्स के मुताबिक वहाँ पे सब। चित्राल में बहुत बड़ा एक सैलाब आया था, हम जब उन लोगों की रेस्क्यू के लिए पहुंचे, पहले तो उनके लिए वो छोटे छोटे खेमे लेकर गए थे और साथ में राशन और कुछ बिजली का इंतज़ाम था, सोलर का। तो जब मैं तकसीम कर रहा था लोगों में, तो वहाँ से एक बाबा जी ने कहा, जी हमारे लिए बहुत कुछ हो गया है, ऊपर वाले मर जाएंगे, सर्दी आने वाली, अगर आप हमें छोड़कर उनके पास चले जाए तो आपकी बड़ी। इस वाक़े ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया इस काम में, क्योंकि वो बेचारा खुद मजबूर था, लेकिन उसने कहा नहीं आप मुझे छोड़ें, ऊपर चले जाएं, सर्दी आने वाली है। तो फिर मैं उनके कहने सबसे मुतासर हूँ। अब मुनीर के अंदर जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे एक जगह पे रश लगा हुआ था, क्रेन काम कर, हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे हमने देखा कि वो पत्थरों को हटा रहे हैं और जो लोग हैं वो जुनूनियों की तरह, पागलों की तरह ना वो पत्थरों को आगे पीछे कर रहे हैं। तो हमें नहीं समझ आ रही थी कि ये इतनी शिद्दत के साथ क्यों पत्थरों को आगे पीछे कर रहे हैं। जिस वक्त तो क्रेन ने चंद पत्थर हटाए, लोगों ने पीछे खींचे पत्थर, उसके बाद रेत के अंदर से 2 टांगे बरामद। वो मंजर जब हमने देखा और देखने के बाद मुझे अभी भी याद है कि शायद वो कपड़े वाइट कलर के होंगे लेकिन उन पे ग्रे स्ट्रक्चर सारा था। तो वो पाँव की भी मिट्टी में जैसे सीमेंट में लगे होते। तो वो सिर्फ 2 टांगे हमने बाहर बरामद होती देखी और उसके बाद लोगों ने दीवानों की तरह फिर उस लाश को निकाला। हमारा एक साथी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बेहोश हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर वकारुल हक साहब, शहजाद साहब।